So hello everybody, this is Shivam back again with the new video on a video series of CSI and JR for Sciences. So in this video I am going to discuss about the most important topics of atmospheric sciences. This is one of the most asked question also, which is scale height. I don't know why तुम लोग को इतना डर लगता है from this scale height. Like each year I have requests for this question only. So today I am going to discuss in detail in like आज के वीडियो के बाद ओके स्केल हाइट में कभी प्रॉब्लम होगा, दिस इज माई गारंटी. ओके, दिस इज माई गारंटी टू यू. Okay, so let's start then without wasting a time. Okay, before that, this is my channel. Over here you will get lots of video regarding CSR, NET, GATE, everything. I just uploaded one video over here, which is this one 28 minutes ago. So please check this out, you will really get some idea. Okay, so let's start then. Scale height. Okay, so let's start with the definition. What a scale height means. First of all, it is denoted by a capital letter H. Okay, it is denoted by a capital letter H. It is basically a distance over which a quantity decreases by a factor of E. In mathematical terms, we can say that it's a height where density or a pressure above the surface decreases by factor of E, or you can say 1 by E. 1 by E, which is mathematically equal to 2.718 inverse. We can write like this. Okay, times or equal to 0.368. Okay, we can say like that. Okay, mathematically. So it's basically a vertical distance above the surface at which density or a pressure of the atmosphere decreases by exactly 1 by E or factor of E. Okay, so this is the thing about a scale height. It is denoted by symbol H. Okay, simple, and it depends upon various factors. So let's see. First of all, it depends upon planet's gravity. We know that planet's gravity is not same. Okay, so in CSIR they ask scale height for Mars, then they ask sometimes compare the scale height of Mars with respect to Earth. Okay, so they can ask about Moon also, like that. So each planet has its own gravity field, right? Each has its own G value. Basically G, I am talking about G, small g, that is acceleration due to gravity, and it is equal to gm by r square. Okay, so it depends upon planet's gravity or acceleration due to gravity, you can say. Second, so these are the factors affecting H. These are basically factors affecting H. So this is the first factor. Second factor is what? Second factor is basically the temperature of the gases in the atmosphere. What is the temperature of the gas? And here I am talking about individual gases in atmosphere. Okay, then the third one is masses of individual gases of atmosphere. So you should know the the masses of like nitrogen, oxygen, in points, exactly in points. Okay, you should know this, because in exam they will never give you the values. Okay, you have to know. For example, nitrogen, it is 2.3 into 10 to the power minus 26. अब तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो कि सर वैल्यू नहीं मिल रहा है. वैल्यू नहीं देंगे. दिस इज CSIR एग्जाम, मजाक नहीं चल रहा है. यू शुड नो. ओके, फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना है तुमको, राइट? सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटलीस्ट आर्गन, ये चार का तो याद रखना पड़ेगा एनी हाउ, अदरवाइज यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, प्रीवियस ईयर में आज तक कम से कम एटमॉस्फेरिक हाइट पे नहीं भी क्वेश्चन आया होगा, तो इट इज़ मोर देन 8 और 9. ओके, इतना क्वेश्चन तो है. और
For that you need to know the values, mass values of different gases. Okay, so you need all these things. On these factors ये सारे H की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है. So the first thing is your planet's gravity, that is G, and then its temperature of gases, and then masses of individual gases of the atmosphere. Okay, so now let's see the equation. Equation is H equal to kT by mg. So here H is scale height, no doubt you know. K is what? It's a Boltzmann constant. Boltzmann कांस्टेंट हम लोग बहुत बच्चे से पढ़ते आए हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में. एंड द वैल्यू इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर डिग्री. ये होती है इसकी वैल्यू. ओके, ये दे देते हैं जनरली, वो दे देते हैं के की वैल्यू, बट तुमको मासेज नहीं मिलेगा. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमेशा मीटर पर सेकेंड में होता है, पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, M is average mass of atoms in kilogram. Average mass of atoms in kg. T क्या है? The T is temperature in Kelvin. Temperature, remember if it is in degree Celsius तो तुमको Kelvin में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Temperature in Kelvin. ओके, सॉरी, केल्विन. देन जेड एक और फार्मूला दिखाते हैं, उसमें यूज होता है वर्टिकल एल्टीट्यूड इन मीटर. ओके, सो एक और फार्मूला है पी जेड इज इक्वल टू पी नॉट ई का पावर minus z by h. This is the another formula. Okay, so ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा. Okay, here तुमको ये समझ में आ रहा है? If you have any problem, feel free to ask in comment section. Okay, so यहाँ P नॉट क्या है? P नॉट हम लोग मानते हैं कि प्रेशर एट हाइट z इक्वल टू 0. दिस इज z इक्वल टू 0 पर है, और ये है जिसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जेड, दिस मच इज द जेड, आप वहाँ प्रेशर निकालिए. सो दिस इज द प्रेशर एट सर्टेन हाइट एंड दिस इज द प्रेशर एट सी लेवल, और जहाँ जेड इक्वल टू 0 तो हम लोग इसको सी लेवल पर प्रेशर मानते हैं. प्रेशर एट सी लेवल, और तुमको यहाँ निकालना होगा. ओके, एच स्केल हाइट होता है, यू नो. जेड इज व्हाट? जेड इज द वर्टिकल एल्टीट्यूड इन मीटर. यही जेड को यहाँ पुट करना होता है. ओके, सो विल सॉल्व क्वेश्चन ऑन दिस वन एंड दिस वन. पहले हम लोग कुछ नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, देन विल सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम CSIR. ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन. बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू राइट सम वैल्यूज. अगर तुम ये भी वैल्यू भी याद कर लेते हो ना, तो एक तुमको मतलब बहुत चांसेस है कि तुम एग्ज़ाम में तुम आंसर सही करके आ जाओ. सो एक वैल्यूज़ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं. पहले इसे मिटाते हैं. मतलब कहीं कहीं जैसे हमारे यहाँ इसकी पढ़ाई होती थी तो वी नो सम वैल्यूज़. ऐसे सब वैल्यूज़ याद करना इट्स डिफ़िकल्ट. वेनस का जो स्केल हाइट होता है वो 15.9 किलोमीटर होता है. ओके, for earth it is 8.5 kilometer. It's in kilometer, not in meter. मार्स के लिए 11.1 किलोमीटर होता है. Then for Jupiter it is 27 kilometer. For Saturn it is 59.5 kilometer. Uranus 27.7 kilometer. Neptune it is 19.1 किलोमीटर. ओके, सो एट लीस्ट मार्स, अर्थ, वेनस, इसका तो मालूम होना ही चाहिए. यू शुड नो. अब इसमें बोलोगे कि मरकरी का क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो वहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि द एटमोसफियर ओवर देयर इज़ वेरी वेरी थिन. ओके, सो आई एम नॉट यूजिंग दिस मरकरी ओवर हियर.
So yeah, Venus, Earth, Mars. Now let's solve some questions. So यहाँ अर्थ की जी दी हुई है, बेसिकली जी ग्रेविटी दी हुई है, टेम्परेचर भी केल्विन में दिया है, सो देर इज नो नीड टू चेंज. यहाँ दे रहा है एटमॉस्फेयर में 22% वी हैव ऑक्सीजन. और देखो यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है, अब O2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड ऑक्सीजन का इतना होता है वेट, मास होता है, सॉरी इतना मास होता है 2.67 इंटू 10 टू द पावर -26 kg. चूँकि ये 2 एटम्स हैं इसलिए 2 से इंटू कर रहे हैं. ओके, सो यू शुड नो, ये चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा. नाइट्रोजन के लिए भी दे दे रहा है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -26 kg, और चूँकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए 2. तो देखो सॉल्व करना बहुत ही आसान है. सो सीधे लगाओ फॉर्मूला, एच इजकल टू के टी बाई, अभी यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हैं, के टी बाई एम जी. के की वैल्यू क्या थी, इट्स अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सो इट इज 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23. टेम्परेचर कितना है 290, 4.76 इंटू 10 टू द पावर -26. ये हम 4.76 इंटू 10 टू द पावर -26 कैसे कर दिए, इसको और इसको दोनों को ऐड किया हम. ओके, इट इज गिवन दिस मच, हियर गिवन दिस मच, दोनों को जब तुम ऐड करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू. ओके, बाय एडिशन ऑफ दिस टू, यहाँ हम कर देते भी हैं सिंपल. तो तुमको ऐसे ही ऐड नहीं करना है, तुमको अगर निकालना होगा एवरेज एटॉमिक मास, पहले तुमको निकालना होगा एवरेज एटॉमिक, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ऑक्सीजन कितना है 22%, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.22. ओके, कितना है मास इसका, 2 इंटू 2.67 इंटू 10 टू द पावर -26 kg. सो ये ऑक्सीजन का आ गया, प्लस नाइट्रोजन भी तो है 78, तो इसको 0.78 लिख सकते हैं. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 4. अभी इसका भी तो लिखना पड़ेगा, यहाँ कितना दिया हुआ है 2 इंटू 2.3, ओके, इंटू 10 टू द पावर -26. तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करके सम करोगे यू विल गेट 4.76 इंटू 10 टू द पावर -26. यही वैल्यू को हम यहाँ लिख रहे हैं. दिस इज एवरेज एटॉमिक मास. एम का मतलब हम बताए भी थे, एवरेज एटॉमिक मास इन केजी. तो एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, इस तरह से निकलेगा. ओके, सो फॉर दिस यू नीड द परसेंटेज एज वेल एज दिस वैल्यू. ओके, अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ जी भी लिखेंगे 9.81. व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 8570 मीटर और 8.6 किलोमीटर. ओके, दिस इज द एच वैल्यू, 8.6 मीटर और 8.6 किलोमीटर. ये अपना स्केल हाइट आ गया, यही हमको निकालना था. इजी है, इजी और नॉट, टेल मी. इजी. चलो नेक्स्ट. तो ये अगर मीटर में पूछता है तो मीटर में ये हो जाएगा वैल्यू तुम्हारा, अगर किलोमीटर में पूछता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या इसको तुम 8.6 राउंड करके लिख रहे हैं, ठीक है, इन किलोमीटर्स, अबाउट 8.6 किलोमीटर. इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट्स अबाउट. नाउ अब है दूसरा क्वेश्चन. मार्स हैज़ एन एटमोसफियर नियरली 100% ऑफ CO2. अब यहाँ इंस्टीड ऑफ दिस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ दिया हुआ है मास भी दिया हुआ है. ओके, सो एट अ टेम्परेचर ऑफ 210 केल्विन व्हाट इज द स्केल हाइट. सिंपल है. अब यहाँ सिर्फ चेंज क्या होगा, तुम्हारा ये चेंज हो जाएगा दिस एम, क्योंकि यहाँ आ रहा है CO2. ओके, और ये देखो इस क्वेश्चन में तुमको जी भी चेंज कर रहे हैं,
हमारे अर्थ के केस में क्या था 9.81, ओवर हियर जी इज 3.7। तो पहले तो लिखना होगा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा CO2 का। सो एवरेज एटॉमिक मास फॉर CO2 इज, ये तुमको याद करना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ CO2। अभी हम लोग जब CSIR का क्वेश्चन देखेंगे ओवर देयर ये चीज़ें लिखी नहीं होती हैं, तुमको खुद से याद करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। ओके, सो एंड जी का वैल्यू दिया हुआ है 3.7। ओके, 3.7 इज गिवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू 1.38 kT होता है, k का वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज दिस मच, ओके, इनटू 210, ओके, बाई 210 केल्विन दिया हुआ है ऑलरेडी केल्विन में, 7.3 इंटू 10⁻⁻26, 3.7। जब तुम सॉल्व करोगे यू विल गेट 10700 मीटर और 10.7 किलोमीटर। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर CO2 इसमें होगा मार्स में, सो दिस इज द स्केल हाइट। अर्थ का स्केल हाइट कितना है 8.6 किलोमीटर, क्योंकि रियल में इवन अर्थ में तुम देखोगे रियलिटी में हियर वी हैव मोर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है 78%, 21% इज योर ऑक्सीजन, तो टुगेदर 99% तो यही डाइएटोमिक गैसेज होंगे। नाइट्रोजन इज ऑल्सो डाइएटोमिक गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो डाइएटोमिक गैस। अब 1% में तुम्हारा वाटर वेपर है, ट्रेस गैसेज हैं, आर्गन हैं, ऑल दिस थिंग्स, CO2 इज देयर, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ओके, सो ये बन गया। यहाँ क्या निकालना था अगेन, व्हाट इज द स्केल हाइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है, मून हैज़ एटमॉस्फेयर। रियल में मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बट यहाँ लिख रहा है तो मान लेते हैं, लेट्स सी। अबाउट 0.1% सोडियम है एंड इट्स मास इज गिवन। इफ द स्केल हाइट डिड्यूस्ड फ्रॉम द सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन इज 120 किलोमीटर, स्केल हाइट यहाँ दे दिया है। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट टेम्परेचर, स्केल हाइट दे दिया है। अभी हम लोग देखें फार्मूला था स्केल हाइट इज इक्वल टू kT/mg. So here the formula becomes h into mg, okay, by k is equal to t. We can write like this. ये formula आ गया हमारे पास। Okay, so let's solve this then. देखते हैं, सब चीज़ तो गिवन है। t is equal to h, यहाँ स्केल हाइट कितना है, लेट्स सी, स्केल हाइट इज 120 किलोमीटर्स। तो स्केल हाइट यहाँ लिखते हैं, लेट्स राइट इट डाउन, दिस इज योर इन किलोमीटर। अब देखो जी की वैल्यू क्या है, मीटर में है, ओके, ये किलोमीटर में है, इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो स्केल हाइट एच जो कि 120 किलोमीटर दिया है, इसको जब मीटर में करोगे 3 जीरो डालना पड़ेगा और सो ये हो गया तुम्हारा टी इक्वल टू, फार्मूला लिख लेते हैं, h इंटू एम जी बाई के। सो h हो गया दिस मच, m कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻26, ये चीज़ भी गिवन है। और ये सिंस हाँ ये हो गया तुम्हारा, एंड हियर g इज हाउ मच, g इज 1.6, ठीक है, डिवाइडेड बाई k कितना है 1.38 होता है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि फिक्स वैल्यू है दिस मच। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 918 केल्विन। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब तुम सोचो कि ये क्वेश्चंस 2015 में आया हुआ है, 2015 में दिसंबर के बी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन सेट ए, उसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उस समय ये कैलकुलेटर भी नहीं हुआ करता था, तब ऐसे क्वेश्चंस आते थे। सोचो आजकल कैलकुलेटर है। सो तुम्हारी मेमोरी पावर, तुम्हारी फास्ट कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, सब चीज़ चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, थ्योरी नॉलेज भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, शुड नो इवन व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन रिसर्च पेपर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, इट्स नॉट अ जोक। ओके, नाउ
Next question. At what altitude on the earth would the density of atmosphere Pz be only 10%? What is at sea level P naught? हम लोग ये फार्मूला देखे थे. Remember the second formula. This is the sea level pressure and this is the given height pressure. तो ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है. ओके, वेरी इजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही आसान है. देखो बहुत ही आसान है. पहले ये फार्मूला भी हम लोग देखें ना. फार्मूला देखो, पी जे इक्वल टू पी नॉट ई का पावर जेड माइनस एच, सॉरी जेड बाई एच. पी जे इक्वल टू पी नॉट ई का पावर माइनस एच बाई जेड. दिस इज योर formula. Now we are going to use this formula to solve this question. अब देखो क्या क्या given है. First of all see what is given over here. Okay, so PJ दिया हुआ है 10%, तो इसको हम लोग 0.1 लिख सकते हैं. P नॉट तो निकालना है हमको. This we have to find. Okay, what it is at sea level P naught. We have to find this. No, we have to find at what altitude. So we have to find Z actually. हम लोग को altitude निकालना है. Z is your altitude. H is your scale height, right? So we have to find Z. Okay, so हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. सी लेवल पर हम लोग का प्रेशर कितना होता है, 1 atm प्रेशर होता है. तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं. वी कैन सिंपली राइट, ये तो सॉरी 1 सेकेंड, जेड बाई एच माइनस में ऐसे था फार्मूला. सो ये 1 atm प्रेशर होता है तो 1 भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइनस जेड बाई एच, वी कैन राइट लाइक दिस. Taking log both side, ये हो जाएगा ln 0.1. ओके, वी कैन राइट लाइक दिस. एंड इस साइड लॉग लेंगे तो ई हट जाएगा, सो इट बिकम्स जेड बाई एच. ओके, नाउ देन ओके, सो नाउ इफ यू सॉल्व दिस you will get z equal to 2.3 h. ठीक है, z equal to 2.3 h. अब हम लोग जानते हैं अर्थ का जो स्केल हाइट होता है इट इज़ 8.6 किलोमीटर. h इक्वल टू h अर्थ इज 8.6 किलोमीटर. हम पहले इसीलिए तुमको बताया था कि ये तुमको याद होना ज़रूरी है. तुम निकाल भी सकते हो. पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यही चीज़ हम लोग निकाले हैं. ओके, दिस इज 8.6 किलोमीटर. तुम याद कर लोगे तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो डायरेक्ट हम यहाँ 8.6 यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ को. ओके, सो जेड इक्वल टू 2.3, एच का वैल्यू कितना है 8.6. जब इसको मल्टीप्लाई करोगी यू विल गेट 19.8 किलोमीटर्स. यानी एट दिस हाइट ऑफ 90.8 किलोमीटर the density of atmosphere be only 10%. ओके, सिर्फ 10% हो जाएगा सी लेवल के. इज दिस क्लियर टू यू? अब ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेसिकली फ्रॉम CSIR. अब ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ये क्वेश्चन आ चुका है CSIR में 2015 में आया हुआ है. सोचो, उस समय न्यूमेरिकल्स ये भी नहीं था, कैलकुलेटर भी नहीं था, और तब इस तरह के क्वेश्चंस आते थे. ये है 15 में दिसंबर का 21 नंबर क्वेश्चन है. पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज गिवन ओवर हियर. सो 9.81 जी, टी दिया हुआ है 290 केल्विन. नहीं दिया हुआ है, अर्थ के लिए बारे में पूछ रहा है, सो 290 केल्विन ही होगा. एंड के का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.38 होता है इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर डिग्री. ओके,
सो कह रहा है कि अ प्लैनेट इज आइडेंटिकल टू अर्थ इन ऑल रिस्पेक्ट विथ एक्सेप्ट दैट इट्स एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन इज प्योरली ऑक्सीजन। यहाँ बोल रहा है कि जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन से बना हुआ है, ना कि अर्थ जिसमें 80-20 का रेशियो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का है। ठीक है। द स्केल हाइट ऑफ सच एटमॉस्फेयर रिलेटिव टू द अर्थ, तो मानते हैं कोई प्लैनेट एक्स है, इसका स्केल हाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है। अर्थ का हम लोग जानते हैं 8.6 मानो 8.6 किलोमीटर्स होता है, और अगर मीटर्स में देखेंगे तो 8570 मीटर्स, इतना हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। ओके, तो अगर तुमको ये भी वैल्यू याद रहे तो तुम देखो इसमें से हमको x बाई अर्थ निकालना है, स्केल हाइट ऑफ एक्स प्लैनेट और स्केल हाइट ऑफ अर्थ का रेशियो। तो इनमें से ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बच क्या रहा है फर्स्ट, क्योंकि ये वैल्यू इसके क्लोज है, 8 के क्लोज है। अब ये क्यों 8.6 यहाँ है, यहाँ 8 क्यों है? क्योंकि उस क्वेश्चन में हम लोग जो रेशियोज लिए थे वो 80:20 का रेशियो नहीं लिए थे, वो हम लोग रेशियो लिए थे 78:22। देखो क्वेश्चन जो है हियर द रेशियो इज 78:22, इसलिए हियर वी गेट 8.6 किलोमीटर्स, बट यहाँ रेशियो ले रहा है 80:20 का। ओके, और इसलिए ये 8 किलोमीटर के नज़दीक है। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग अगर वैल्यू एक याद रहे कॉमन तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो तुमको अर्थ का मालूम है ही। ओके, वैसे भी कर सकते हो। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। इज दिस क्लियर टू यू? बताओ, कोई इशू हो तो बताओ, बहुत आसान है। कोई इशू? नाउ सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ओवर हियर it is given that h equal to कितना है kt, so 1.38 into 10 to the power minus 23 into 290। यहाँ 290 इस प्लैनेट के लिए क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बोल रहा है कि प्लैनेट जो है प्लैनेट एक्स वट एवर इट इज सिमिलर टू द अर्थ इन कंपोजिशन इन द टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट ये पूरी तरह से ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो यहाँ हम लोग ऑक्सीजन का के लिए क्या करेंगे, 2 into 2.67 into 10 to the power minus 26 लेंगे। अब हम ये कैसे लिए हैं पहले ही क्वेश्चन में हम लिख चुके हैं, इसकी वैल्यू देखो, ये ऑक्सीजन का था, ये देख रहे हो, तो इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं इसको, एंड देन मल्टीप्लाइड विथ 9.81। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 7.2 किलोमीटर्स, यानी इस प्लैनेट एक्स का जो हाइट है दैट इज लेस दैन दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का हम लोग माने थे 8.6 फॉर 78:22 रेशियो, हियर इट इज़ 80:20 रेशियो। उसके लिए अगर सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, इसलिए 72/8 एंड दैट्स द रीज़न वाई फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके, अब देखो दूसरा CSIR का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि इफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ CO2 द एटमॉस्फेरिक स्केल हाइट इज। अब यहाँ ऑक्सीजन को छोड़कर ये पूरी तरह से पूछ रहा है कि हियर इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर 78:22 का रेशियो हो, 78:22 का रेशियो, देन इट इज़ 8.6 किलोमीटर्स, वी नो दैट। ओके, और इन मीटर्स इट इज़ 8570 मीटर्स, ये हम जानते हैं फॉर दिस रेशियो। अब कह रहा है कि द इंटायर एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ CO2 ओनली, 100% CO2 का बना है, तब क्या होगा? तो फिर हम लोग स्केल हाइट निकाल लेते हैं 100% CO2 के लिए। सो यहाँ H इक्वल टू KT होता है, K के लिए वी कैन राइट लाइक दिस, T इज़ व्हाट, सिंस अर्थ की तरह ही है तो 290 केल्विन ही लेंगे हम लोग। ओके, विल टेक 290 केल्विन, 290 केल्विन डिवाइडेड बाई 7.3 इंटू 10 to the power minus 26। दिस इज़ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, हम पहले भी तुमको बता चुके हैं, ये तुमको याद करना पड़ेगा। एंड 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो तुमको मिलेगा 5594 इंटू 073 मीटर्स। ओके, ये तुमको आ गया फॉर द प्लैनेट विच इज सिमिलर टू अर्थ बट मेड अप ऑफ CO2, 100% CO2, HCO2 के लिए। ओके, एच अर्थ के लिए कितना है, जिसमें 78 और 22 का रेशियो हो और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, वहाँ इट इज़ 8570 मीटर्स। ओके, अब देखो पहला इसमें से होगा क्या, तो इंक्रीज तो नहीं होगा। देखो ये चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं, हमको रेशियो निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी इसका रेशियो बाई HCO2 बाई H अर्थ निकालना है। सो वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, लेट्स सी। अगर हम लोग यहाँ देखो 5594 इंटू 073 को डिवाइड करते हैं 8570 से, यू विल गेट 0.65। ठीक है, इसमें से ऑप्शन में से अगर रेशियो लेते हैं 29/44, इसको भी अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग को आता है सेम 0.65, यानी नो डाउट it will be either this one or this one, second or third, but whether it will decrease or increase, so here it will decrease, क्योंकि देखो प्लैनेट के केस में the H height or scale height is less than that of the earth, so it will decrease by 29/44. okay, so hence we can say that it decreases by factor of 22/44, that is the option number third. Now I know कि most of you प्रॉब्लम लग रहा होगा तुम लोग को कि यार डिफ़िकल्ट तो है, बट दिस इज़ द CSIR. ओके, सो यू शुड नो दिस. ओके, अब तुमको इतना तो होना चाहिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते. ओके, इज दिस क्लियर टू यू? बताओ. So if you are preparing for exams like CSIR NET, then don't expect everything from the CSIR, from the agency to mention in the exam. Okay, you should know these values. Okay, concept भी चाहिए, रटना भी है, हर चीज़ यहाँ है. Okay, so thank you very much. हम जानते हैं बीच में बहुत लोग छोड़ चुके होंगे, बट दिस इज़ फॉर टॉपर्स ओनली. ओके, सो अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर रियली सीरियस फॉर CSIR. ऐसा नहीं कि गेट भी दे रहे हैं, नेट भी दे रहे हैं, साथ में GSI भी देख रहे हैं. यू आर रियली सीरियस. आप मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू बी अ साइंटिस्ट, ओके, इन फ्यूचर. सो दैट्स इट.